Hello everyone, I hope everyone is good. Welcome to lecture 3 in the lecture series for Foundation in Management Accounting. In this lecture, we are going to start about our next chapter, that is accounting for material. There will be a couple of lectures for this chapter specifically, with each video lecture covering a specific topic and concept. Let's start. In the very first lecture of this subject, of this chapter actually, we are going to discuss about our purchase cycle. Now, this purchase cycle was first taught to you back in MA1, right? So I will be quick when I'm covering this purchase cycle, and then we will move ahead. So in purchase cycle, what happens that you were taught about the entire purchasing process and all the documentations that were involved in this purchase cycle. So I'm going to start quick by number one. We were having material requisition. Material requisition was the document that basically was issued by your production department. Okay, issued by production department to stores department, and why it was issued to request for materials. Okay, when for example अगर आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके पास कोई चीज खत्म हो गई है, तो वो चीज जो है स्टोर्स डिपार्टमेंट से मांगेगा, और जब वो स्टोर डिपार्टमेंट से वो चीज मांगेगा तो वो मटेरियल रिक्विजिशन वाली डॉक्यूमेंट इशू करेगा. देन नंबर टू हमने बात पढ़ी थी या हमने बात की थी रिगार्डिंग परचेज रिक्विजिशन. Now, what happens in purchase requisition? Purchase requisition is issued by stores department and issued to purchase department. Okay, and to request of buying, or we can say to request to buy materials. Okay, for example, the materials जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की है स्टोर्स के पास, अगर वो स्टोर्स के पास नहीं है तो स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेज रिक्विजिशन इशू करता है इसको परचेज डिपार्टमेंट को. ठीक है. देन नंबर थ्री वी हैव रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. Now what happens that for example हम assume करते हैं कि हमारा जो business है, it's a new business, so जो purchase department होगा, this department is going to look for suppliers and it will basically request suppliers to give quotations. Okay, so request for quotation is sent by purchase department to suppliers so that we can have their quotations. Okay. Number four, we basically get quotations. So quotations have three specific names. We can also call it price list, and we can also call it catalog. So it's basically, you can say, as the name suggests, price list or quotation, it is by supplier. So who sends it? Suppliers send it to purchase department. So different suppliers जो है वो purchase department को ये अपनी quotation या price list जो है वो भेजेंगे, और let's say 10 suppliers की तरफ से हमें जो है being purchase department हमें quotation receive हो गई है, तो हम इन quotation की comparative statement जो है वो बना लेंगे, जिसमें हम compare करेंगे कि which supplier is best, which supplier is best, और हम किस बेसिस पे डिसीजन लेंगे. हम ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी जो उसके पास मौजूद है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रेप्यूटेशन कैसी है उस सप्लायर की, क्रेडिट टर्म्स क्या दे रहा है वो हमें. इन तमाम बातों पे हम जो है एनालिसिस करेंगे और एक बेस्ट सप्लायर को चूज कर लेंगे. जब बेस्ट सप्लायर चूज हो जाता है हमारे पास, तो फिर हम उस सप्लायर को परचेज ऑर्डर भेजते हैं. तो परचेज ऑर्डर कौन भेजता है? परचेज ऑर्डर भेजा जाता है बाय परचेज डिपार्टमेंट, और वी कैन से परचेज ऑफिसर. किसको? टू सप्लायर. किस लिए? टू रिक्वेस्ट और टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर
needed materials. Okay. जब परचेज ऑर्डर आपने भेज दिया, जैसे ही सप्लायर को परचेज ऑर्डर रिसीव होगा, तो वो उसके रिस्पॉन्स में एक कंफर्मेशन जो है वो लेटर भेज देगा। यू कैन से कंफर्मेशन लेटर। वही चीज होती है जब लेट्स से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग जब आप ऑर्डर प्लेस कर लेते हो तो आपको विद इन फ्यू मिनट्स एक ईमेल आ जाती है, एंड दैट क्लियरली स्टेट्स थैंक यू सो मच फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर विद अस, राइट। तो ये सप्लायर भेजता है किसको? टू परचेज डिपार्टमेंट। देन नंबर 8, कंफर्मेशन लेटर के बाद देयर इज अ टेम्पररी डॉक्यूमेंट जो बहुत कम भेजी जाती है, दैट इज एडवाइस नोट और एडवाइस लेटर। लेट मी राइट इट एज एडवाइस नोट। एडवाइस नोट पे क्या होता है, ये बेसिकली सप्लायर ही बेचता है टू परचेज डिपार्टमेंट। किस वजह से? टू जस्ट अपडेट ऑन डिलीवरी एंड ऑर्डर, राइट। कि भाई हम आपका इस दिन ऑर्डर भेज देंगे, आपका ऑर्डर बन रहा है, एंड इस तरीके से जस्ट एक स्मॉल रिमाइंडर होता है एडवाइस नोट। देन नंबर 9, फाइनली देयर इज अ डे ऑफ डिलीवरी, और डिलीवरी के साथ आपका जो सप्लायर है वो क्या भेजेगा? वो सब डिलीवरी नोट भेजेगा, राइट। सो इट्स बाय सप्लायर, और ये डिलीवरी किसकी तरफ भेजी जाती है? ये बेसिकली आपका जो डिलीवरी होता है वो कौन सा डिपार्टमेंट पिक करता है? वो आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है वो डिलीवरी नोट और डिलीवरी जो भी है उसको एक्सेप्ट करेगा, राइट। सो याद रखिएगा, जब भी एक सप्लायर डिलीवरी भेजेगा तो उसके साथ एक डिलीवरी नोट भेजेगा कि हमारी तरफ से ये चीज जो है हमने आपको डिलीवर कर दी है। बहुत दफा ऐसा होता है कि ऑर्डर के साथ ही इनवॉइस आ जाती है, लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि इनवॉइस ऑर्डर के बाद आती है। देन नंबर 10, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज गुड रिसीव्ड नोट। ओके। गुड रिसीव नोट कौन बनाता है? ये स्टोर्स डिपार्टमेंट बनाएगा। किसके लिए? फॉर इंटरनल एविडेंस पर्पस। ओके। फॉर इंटरनल एविडेंस पर्पस का मतलब है कि स्टोर्स डिपार्टमेंट जब वो डिलीवरी रिसीव करेगा तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर देगा कि यस वी हैव रिसीव्ड दिस डिलीवरी, और उसके अगेंस्ट वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, दैट इज गुड रिसीव नोट। गुड रिसीव नोट को पॉपुलरली शॉर्ट फॉर्म में GRN भी कहते हैं। ओके। एंड इसके साथ साथ याद रखिएगा, गुड रिसीव नोट इज मैच्ड विद परचेज ऑर्डर। सो आई एम हाईलाइटिंग दिस, राइट। गुड रिसीव नोट जो है वो परचेज ऑर्डर के साथ मैच किया जाता है। क्यों? ताकि ये देखा जाए कि आर द थिंग्स दैट वी जस्ट रिसीव द सेम एज वी जस्ट प्लेस ऑर्डर फॉर, राइट। ये देखा जाता है कि जो चीजें हमने मंगवाई हैं क्या वो वही हैं जिसका हमने ऑर्डर किया था या नहीं। तो इसको स्पेसिफिकली जो है परचेज ऑर्डर नंबर के साथ भी मैच किया जाता है, और गुड रिसीव नोट पे परचेज ऑर्डर नंबर लिखा जाता है। देन गुड रिसीव नोट के बाद हमारे पास एक और रिपोर्ट होती है, दैट इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी स्टोर्स डिपार्टमेंट ही बनाता है, राइट। और स्टोर्स डिपार्टमेंट में जो है वो आपका जो इंस्पेक्शन ऑफिसर होता है वो बनाता है, ताकि ये देखने के लिए कि जो चीजें हमें मिली हैं आर दे इन यूजेबल कंडीशन और नॉट। ओके। उसके बाद कुछ टाइम बाद हमारे पास इनवॉइस आ जाती है, और ये इनवॉइस कौन भेजता है? बाय सप्लायर। सप्लायर, और किसको भेजेगा? टू परचेज डिपार्टमेंट। ओके। ऑब्वियसली इट्स इनवॉइस का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट। देन नंबर 13 हमारे पास इसमें आ जाता है इंटरनल चेक रिक्विजिशन। इंटरनल चेक रिक्विजिशन क्या होता है? ये कौन बनाएगा? ये परचेज डिपार्टमेंट बनाता है। किसके लिए? फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके। एंड ये क्यों बनाया चाहता है? टू रिक्वेस्ट फॉर द पेमेंट अगेंस्ट स्पेसिफिक इनवॉइस, राइट। सो देखिए, परचेज डिपार्टमेंट तो पे नहीं करेगा सप्लायर को, तो सप्लायर को कौन पे करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट पे करेगा। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा? जो परचेज डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट भेजेगा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट थ्री वे वेरिफिकेशन करेगा। ओके। थ्री वे वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, थ्री वे वेरिफिकेशन प्रोसेस, राइट। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में तीन डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर किया जाता है। नंबर 1 परचेज ऑर्डर, नंबर 2 GRN दैट इज गुड रिसीव नोट, एंड नंबर 3 इनवॉइस।
देखिए, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों की जाती है थ्री वे वेरिफिकेशन। ये इस वजह से की जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि नंबर वन, जो ऑर्डर हमने प्लेस किया था क्या वो रिसीव हो चुका है। एंड अगर वो रिसीव हो चुका है तो फिर ये देखा जाएगा कि ओके, क्या जो इनवॉइस हमें मिली है, जो हमने हमें सप्लायर की तरफ से मिली है, क्या ये वही इनवॉइस है जो उस जीआरएन और उन्हीं रिसीव्ड गुड्स के बारे में है या नहीं। राइट, तो इन तीन और जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई किया जाएगा। परचेज ऑर्डर और जीआरएन को वेरीफाई किया जाएगा ताकि हमें ये पता चले जो चीजें हमें मिली हैं क्या वो वही हमने रिसीव की हैं। एंड फिर जो चीजें हमने रिसीव की हैं क्या उनकी वही अमाउंट इनवॉइस में लिखी हुई है जो परचेज ऑर्डर में लिखी हुई थी। तो दिस इज अ थ्री वे वेरिफिकेशन। और जब ये वेरिफिकेशन हो जाती है तो नंबर 14 पे देयर इज अ पेमेंट वाउचर क्रिएटेड। पेमेंट वाउचर का मतलब होता है कि ये एविडेंस फॉर द पेमेंट होता है। तो बेसिकली ये कौन देगा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो बनाता है। किसके लिए? फॉर इंटरनल एविडेंस के लिए। और ये फिल कौन करता है? एंड इज साइंड बाय सप्लायर। ओके, आपका जो सप्लायर है वो इसको साइन कर देता है। Right, so this was a quick revision for you guys for the purchase cycle कि इस तरीके से purchase cycle carry on होता है। ये documents involve होती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ मजीद डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। नंबर वन, वी हैव डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट इज बेसिकली, यू कैन से, परचेज रिटर्न नोट। डेबिट नोट परचेज रिटर्न नोट होता है जो कौन भेजता है? बाय कस्टमर, और वी कैन से बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट। और ये किसको भेजा जाता है? टू सप्लायर व्हेन कस्टमर इज रिटर्निंग गुड्स। जब चीजें आप वापस कर देते हो, राइट, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो एक नोट इशू करेगा एंड दैट नोट इज गोइंग टू बी डेबिट नोट, और इसको हम परचेज रिटर्न नोट भी कहते हैं। इसके रिस्पॉन्स में जो सप्लायर है वो एक और नोट इशू करेगा जो कि होगा क्रेडिट नोट। इसको हम सेल्स रिटर्न नोट भी कहते हैं। ओके, एंड ये कौन इशू करेगा? ये आपका सप्लायर इशू करेगा। किसको? टू कस्टमर्स को, टू कंफर्म एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न गुड्स। ओके, नाउ number 17 will basically be remittance note। इसको ध्यान से सुनिएगा। रेमिटेंस नोट एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, दीज आर बोथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। मैं पहले इनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, एंड स्टेटमेंट ऑफ एन अकाउंट इज बाय। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए कि रेमिटेंस नोट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपका एक रेस्टोरेंट बिजनेस है। ओके, एंड रेस्टोरेंट बिजनेस में आप बर्गर्स जो है वो सेल करते हो, एंड यू गाइस नो कि फॉर गुड बर्गर्स यू नीड टू हैव फ्रेश बन्स ऑन डेली बेसिस। सो ऑन डेली बेसिस अगर आप अपने सप्लायर से फ्रेश बन्स की डिलीवरीज मंगवा रहे हो, सो इन अ मंथ देयर आर गोइंग टू बी 30 डिलीवरीज। ओके, सो मंथ के एंड पे क्या होगा? जो आपका जो अकाउंटेंट है, यानी जो रेस्टोरेंट का अकाउंटेंट होगा, ही और शी इज गोइंग टू मेक अ मास्टर डॉक्यूमेंट जिसको रेमिटेंस नोट कहेंगे, और इसमें तमाम डिलीवरीज की डिटेल्स लिखी होगी कि फॉर एग्जांपल, on 1st of January we received 20 fresh buns at this price, on 2nd of January we received 30 fresh buns at this price, on 3rd of January we received 50 buns at this price। so वो हर डिलीवरीज की एंटायर डिटेल्स होती है, उसका एक फाइनल टोटल कैलकुलेट किया जाता है। ये काम सेम सप्लायर भी करता है। तो जब सप्लायर डॉक्यूमेंट बनाएगा उसको स्टेटमेंट ऑफ एन अकाउंट कहेंगे, और जो कस्टमर डॉक्यूमेंट बनाएगा उसको रेमिटेंस नोट कहेंगे। दोनों डॉक्यूमेंट्स पे एक मंथ का
कि नॉट जस्ट 1 मंथ 1 वीक का भी हो सकता है, 2 मंथ्स का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स, राइट। उसका टोटल जो है वो आपको गिवन होगा, और वो टोटल सप्लायर और कस्टमर मैच करेंगे। इफ इट इज मैचिंग परफेक्ट, एंड इफ नॉट, फिर उसको रिकंसाइल करके मैच करवाया जाएगा, और उसमें जो एरर्स होंगे या जो नॉट मैचिंग की जो कंडीशंस है वो आइडेंटिफाई की जाएंगी, राइट। तो याद रखिएगा, रेमिटेंस नोट एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो कब मैच नहीं करेंगे। हो सकता है कस्टमर ने पेमेंट की है चेक के थ्रू, लेकिन अभी तक तो चेक क्लियर नहीं हुआ बैंक से, तो दोनों के दरमियान डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। हो सकता है कस्टमर ने कोई डिलीवरी रिकॉर्ड ना की हो, डिलीवरी कोई रिसीव ना की हो सकता है कोई डिलीवरी इन ट्रांजिट हो, यानी अभी रास्ते में हो। ठीक है, तो ये बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी रेमिटेंस नोट एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो दोनों में डिफरेंसेस आ सकते हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द परचेज साइकिल। अब परचेज साइकिल के बाद हम थोड़ा सा मजीद बात कर लेते हैं, बिकॉज हम मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। सो आप सब लोगों को पता है कि जो बिजनेस इन्वेंट्री होल्ड करता है या मटेरियल्स जो होल्ड करता है वो कितने तरह की होती हैं। सो एवरीवन ऑफ यू गाइस नोस कि जो बिजनेस इन्वेंट्री होल्ड करेगा, इन्वेंट्री 3 तरह की होगी। नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस, एंड नंबर 3 फिनिश गुड्स, राइट। आप सबको पता है कि एक बिजनेस में इन्वेंट्री 3 फॉर्म्स में मौजूद होती है। रॉ मटेरियल, वर्क इन गुड एंड फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी, एंड फिनिश। ओके, एंड अगर हम इन्हीं की डबल एंट्रीज की बात करें, दैट वर एक्सप्लेन टू यू एट वेरी बेसिक लेवल। ओके, सो अगर हम देखें तो आपको पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल आपका डायरेक्ट भी होगा एंड आपका इनडायरेक्ट भी होगा। ओके, सो आपका डायरेक्ट रॉ मटेरियल भी होता है एंड इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल भी होता है। अगर मैं इनकी एंट्रीज की आपको रिविजन करवा दूं, तो नंबर 1 अगर हम बात करें, issue of direct raw material. I'm writing the short form DRW, direct raw material from stores to production department. If this is the case, the very first case is issue of direct raw materials from stores to production department. अब देखिए, स्टोर से मटेरियल जा चुका है, आपने मटेरियल अकाउंट, सॉरी, स्टोर से मटेरियल जो है वो चला गया है और प्रोडक्शन में मटेरियल जो है वो आ गया है। ठीक है, अब होगा क्या कि आपने ये याद रखना है कि जब भी एक डायरेक्ट मटेरियल जो है वो इशू होगा, जब भी एक डायरेक्ट मटेरियल इशू होगा, तो आपने वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर देना है। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट रॉ मटेरियल जब प्रोडक्शन में जाएगा तभी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, तो वर्क इन प्रोग्रेस ज्यादा हो जाएगा, तो आपने वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर देना है। एंड मटेरियल क्योंकि चला गया है स्टोर से, तो स्टोर्स अपने अकाउंट्स में क्रेडिट साइड पर लिख देगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर। सिमिलरली, जब आप जो है वो इशू करोगे, इशू ऑफ इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, मैंने ऊपर जो है वो उल्टा लिख दिया है यहाँ पर, इट्स डायरेक्ट रॉ मटेरियल। ओके, एंड यहाँ पर इशू ऑफ इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स टू प्रोडक्शन। तो जब आप इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल को इशू करोगे, तो आपने याद रखना है कि इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल का इशू प्रोडक्शन ओवरहेड के अकाउंट में जाएगा, बिकॉज इट इज योर एक्सपेंस। एंड अगेन आप मटेरियल क्रेडिट अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट जो है आप उसको क्रेडिट कर दोगे। ओके, इसमें जो सिर्फ एक बात याद रखनी है, वो याद रखनी है कि जब भी डायरेक्ट रॉ मटेरियल की बात आएगी तो वर्क इन प्रोग्रेस आपने रिकॉर्ड करना है, और जब इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल की बात आएगी तो आपने प्रोडक्शन ओवरहेड रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यहां तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो फॉर दिस लेक्चर दिस वाज ऑल, एंड वी विल सी different other concepts, inventory valuation concepts, especially in the next lecture, that will be next in the series. So तब तक के लिए guys, take care and have a good day. Bye.